پاکستان اور ازبیکستان کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ازبیکستان شوکت مرزایوف نے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ، ترجیحی تجارت کے معاہدے کے تحت اشیاء کی فہرست میں توسیع کے پروٹوکول کی دستاویز بھی شیئر کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان انٹر ریجنل فورم کے قیام کا بھی معاہدہ، دونوں ملکوں نے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے لیے ایکشن پلان کی دستاویز بھی طے پا گئی۔ ازبکستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی صدر شوکت مرزیویف کو سلامی دی گئی۔ تقریب کے آغاز پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صدر ازبکستان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر شوکت مرزیویف سے کابینہ ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ بھرپور استقبال اور شاندار میزبانی پر ازبک صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ آج کا دن میرے لیے بہت یادگار ہے۔ ڈاکٹریٹ اور پروفیسرشپ ملنا میرے لیے اعزاز ہے۔ جس طرح میری اور میرے وفد کی شاندار میزبانی ہوئی، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف کا تقریب سے خطاب، کہا اعزازی ڈگری اور پروفیسرشپ اعزاز کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ ازبکستان کی مائننگ یونیورسٹی میں نسٹ چیئر قائم کی جائے گی۔ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون سے منازل طے کریں گے۔ ازبک صدر اور ان کے وفد کا دورہ پاکستان بہت خوشی ہے۔ پروفیسر اور ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پر صدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاریخی حقائق ہمارے قریبی تعلقات اور شاندار مستقبل کے عکاس ہیں۔ ہم نے اعلیٰ سطح تصویراتی تعاون کونسل کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا علاقائی روابط کے فروغ کے حوالے سے مکمل تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ دو طرفہ تجارت میں اضافے کا پروٹوکول معاشی تعاون کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ ازبیکستان کے صدر شوکت مرزایوف کا GITS کا دورہ، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ازبک صدر کا استقبال کیا۔ ازبک صدر کو GIDS کی دفاعی اور صنعتی صلاحیتوں پر بریفنگ، وفد نے جدید دفاعی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ GIDS کی ازبک وفد کو بریفنگ، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی اور صنعتی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ دفاع، ٹیکنالوجی اور مشترکہ منصوبوں میں شراکت داری بڑھانے پر زور۔ دورے کو پاک ازبک دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ازبک صدر سے ملاقات۔ ازبک صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار کی جانب سے صدر اور وزیر اعظم کا خیر سگالی کا پیغام دیا گیا۔ پاکستان کے ازبکستان کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات کی توسیع، پاک ازبکستان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ صدارتی دورے سے دو طرفہ تعاون کے فروغ کی توقع ظاہر کی گئی۔ دونوں ممالک کا برادرانہ تعلقات مزید گہرے کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ تین روزہ سرکاری دورے پر جرمنی جائیں گے۔ وزیر اعظم 13 سے 15 فروری تک جرمنی میں قیام کریں گے۔ وزیر اعظم میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق، کہا وزیر اعظم سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی تعاون اور معاشی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا روما، ویانا، آسٹریا کا دورہ بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ دو طرفہ ہوگا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے دوران تجارت، معیشت پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آج واشنگٹن میں انتہائی اہم نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کریں گے۔ تقریب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی خطاب کریں گے۔ دعائیہ ناشتے پر پھر سے جمع ہونا بہت عمدہ عمل ہے، ہم سب کو خدا پر بھروسہ ہے۔ وائٹ ہاؤس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جاری۔ بلاول بھٹو نے پچھلے برس بھی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کی تھی۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو بھی اس ایونٹ میں باقاعدگی سے شرکت کرتی رہیں۔ بلوچستان میں آپریشن کے دوران 216 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ کوئٹہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری ہیں۔
100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ अक़साम का असलहा भी पकड़ा गया है। कोयटा में मौमने खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया, ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान शहीद हुए। नोशकी के इलाके को क्लियर को किया जा रहा है। ऑपरेशन में 36 शहरी शहीद हुए। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट की फराहमी मुतासर हो सकती है। नोशकी की शाहराह को भी 24 घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा। बोले, नोशकी के अलावा बाकी इलाकों को पहले रोज ही क्लियर कर दिया था। चीन पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर चीन ने दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जॉन जी डोंग की अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। चीन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के तहत हुई। चीनी सफ़ीर का कहना था कि दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना बलूचिस्तान में खून रेजी और इंतशार फैलाने वालों के लिए फैसला कुन जवाब है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भारतीय प्रॉक्सी को दो टोक पैगाम कहा, BLA एक फितना है जो मासूम शहरियों मजदूरों को निशाना बनाता है। फितना भारत की ईमा पर पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। पाकिस्तान अपनी वहदत, तरक्की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक तोड़ा जाएगा। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि मजलूम कश्मीरियों का लहू एक दिन जरूर रंग लाएगा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद से मुमकिन है। मार्का हक ने कश्मीर कॉज को दुनिया में एक बार फिर जिंदा किया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। आज़ादी कश्मीर के लिए जाने देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का खिताब। कहा, 8 लाख भारतीय फ़ौज भी कश्मीरी अवाम की सोच और हौसले पर काबू पाने में नाकाम रही। कश्मीरी अवाम की कुर्बानी और साबित कदमी दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत हर फोरम पर जारी रखेगा। फैसल राठौर ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2.5 माह के दौरान ये तीसरा दौरा किया है। कश्मीर के लिए उनकी संजीदा काविशें काबिल सताइश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर शोहदा यादगार पर हाजिरी दी। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। आर्मी चीफ का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़्ज़ल यकजहती का इरादा। पाकिस्तान की तरफ से मजलूम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबा नहीं सके। फील्ड मार्शल का जवानों से खिताब। कहा, कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा। कश्मीर मसला अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का अगले मोर्चों का भी दौरा। जवानों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी पैगाम जारी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की शदीद मजम्मत। कहा कि 5 फरवरी को दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी भारत के बिखरने की अलामत है। भारत 7 दिहाइयों से कश्मीरी अवाम पर जुल्म से सितम खा रहा है। कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े हैं। भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म की। कश्मीरी झुकने वाली कौम नहीं, जबर से दबाया नहीं जा सकता। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़मा बुखारी ने कहा, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर न मनाता हो। जब भी कश्मीरियों पर जुल्म हुआ, पाकिस्तान ने भरपूर यकजहती की है। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की जानिब से कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। कहा कि 8 लाख भारतीय फौज भी कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सके। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान तिजारती मुआहदा 16 शोबों में ताउन बढ़ाने के
मुआहदे तय, दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच गए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना था कि आवाम को बिजनेस के मौक़े फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर सनअत व तिजारत उर्दन ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाक उर्दन शराकत दारी खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। बसंत फेस्टिवल के दौरान बच्चों और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मोटर बाइक पर पाबंदी शहरियों को कम गाड़ियां सड़कों पर लाने की हिदायत की है। फ्री हुकूमती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सिफारिश है। बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और आलूदगी से पाक माहौल में मनाने का मकसद है। जदीद टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड मॉनिटरिंग से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड, वाज़ेह बेहतरी देखी गई। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। शहर बसंत के रंगों में रंग गया। पंजाब हुकूमत का कल से लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान। बसंत पर खानों के ऑर्डर्स और होटल बुकिंग में नुमाया इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से भी शहरी बसंत मनाने लाहौर पहुंचने लगे। बसंत के 3 दिनों में फूड और होटल इंडस्ट्री में अरबों के कारोबार की तवक्को। बसंत को महफूज बनाने के लिए सख्त SOPs, ड्रोन सर्विलेंस और सेफ्टी रॉड्स नस्ब। पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद। साथ ही किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। कहा गया मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए बास पाबंदियाँ आयद की गई हैं। मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, खरीद और फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। बगैर तस्वीर, यक रंगी या कसीर रंगी पतंग या गुड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आई। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। डी फेक और AI से तैयार जाली मवाद हुकूमत और माशरे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मसला सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि सियासी जमातों के लिए भी संगीन है। CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, X, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर झूठी खबरें और आवाज़ और वीडियो की नकल साजी के जरिए गलत मालूमात आम हो रही हैं। महकमा इत्तलात 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा और कानून साजी के जरिए सख्त इक़दाम ज़रूरी है। साबिक आलमी बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान कराची पहुंच गए। आमिर खान की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल निछावर किए और फातह खानी की। आमिर खान की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। साबिक आलमी चैंपियन का मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। आमिर खान को सिंध की रिवायती अजरक पेश की गई। आमिर खान का वाक़ा बॉर्डर का भी दौरा। पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन भी पेश किया।